ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਈ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤਾਰਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨੋ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ ਮੰਨੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਅਮੂਮੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਚੱਲੋ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 2024 ਚ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਬਸ, ਮੁਤਾਬਕਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਅੱਛੇ, ਅਹਾਦੀਸ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਗੱਲ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਇਨ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ੈਇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਜਾਇਓ। ਕਿ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਓ, ਜੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਰਸੂਲ ਹੀ ਦਾ। ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮਰੱਬੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤਾਈਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ ਚ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਨ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ੈਇਨ ਫਰੁੱਦੂਹੂ ਇਲੱਲਾਹ व ਰਸੂਲ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਈਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਕੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚ ਹਰ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਫੜਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਹੀ ਫੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਈਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਨਾਲ। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। तलत मलक साहब ने कल की कीता है वो जी तो आयत है विदेशी नमात अली ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਹਮ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਹਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫਾਹਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹਮ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਰਮ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ट्रुथ ਹਨ ਨੇ। सीकर साहब ने भी ट्रुथ सीकर साहब ने एग्री किया, उन्होंने कहा जी ਤੱਲਰ जो ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ तलत ਐਗਰੀ वाला ਕੀਤਾ कह ਜੀ। रहा है, उनका जो तलत वाला फहम- कह रहा है वही जमात का मौका है। बात ये है कि तलत ਗਲਤ साहब- ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। तलत साहब जो बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, वो अपने अल्फाज में कर रहे हैं, तो आप उससे जो मर्जी मतलब बनाते रहे। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ये- कि उन ये- तलत ये तो- साहब ऐसे ये- बुला ये- लिया वो ये- ये जिन्होंने तो होश है। मलिक साहब जो मैंने बात बयान कर दी थी कि वो वही बात है जो हमें जो समझ आ रही है, वो वही बात है जो जमात जैसा समझते हैं, जैसा मैं समझता हूँ। अल्फाज वो अपने तरीके से बयान कर रहे थे, अब आप उनको अल्फाज को पकड़ के तो आप एक नई एक शोशा बनाना चाहते हैं, तो ये अब आप करते ਇਹ रहे। ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। चुनाव नहीं, शोशा ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मलिक ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। उसको इधर से लफ्ज को पकड़ा, उधर से पकड़ा, तो स्कैंडल बनाने शुरू कर दिए। वो जो तलत साहब ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। फप्पे कुटनियां, वो जो अल्लाह व रसूल जो जिन्हें अल्लाह और गली रसूल ਦੀ मोहल्ले में ਇਤਾਅਤ जो ਕੀਤੀ खवातीन ਉਹ ਨਬੀ होती ਬਣ हैं, ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਹੀ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ। जनाना हरकत होती है वैसे, ये ऐसे बातें तलत बना बना साहब का के तो मौका है कि दुनिया इसमें एक पता इम्तिहान नहीं, मैं है, हैरान हूँ कि मर्द होके इम्तिहान अभी आप खत्म- इसमें इतने माहिर कैसे हो बात गए। तो करने दे रहे हैं, बात तो करने दिया करो। तलत वाला का मौका है कि दुनिया एक इम्तिहान है, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ तो इनाम पहले कैसे मिल गया। तो दुनिया के यहाँ पे इम्तिहान नहीं- सवाल ये उठता है कि क्या उस इम्तिहान से मिर्जा साहब बरी उल जिम्मा थे, उन्हें कैसे फिर ये नाम मिल गया इम्तिहान से पहले? आप, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे तो आप साले सदीक, शहीद और अंबिया में से दर्जा पाएंगे। वो दर्जात हैं जिन पर अल्लाह इनाम करेगा। अब इनाम जो है, असल इनाम तो रोज़े आखिर या मौत के बाद है ना, लेकिन ठीक हो गया, फिर ठीक है, फिर ठीक। लेकिन वो दर्जे आप इधर ही पाएंगे, यौम आखिरत और के वो बाद नबी बनना है। अल्लाह और रसूल की इताअत में ही पाएंगे ना, और रोजे जजा सजा तो बाद नबी बनना जाके। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किए। साथ होंगे कि खुद वो नबी बन जाएंगे। वो दर्जात जो इनाम हासिल करने वाले हैं वो अंबिया, सालेहीन, सदीक, शोहदा, हाँ। इन दर्जात पे अल्लाह इनाम हासिल करेगा ना, तो वो दर्जात अब दुनिया में ही पाएंगे ना अल्लाह और रसूल की इताअत से। क्या सैनी साहब इत्थे ही हो? यानी वो क्या कहना चाहिए, वो उस ग्रोह में आप इस दुनिया में शामिल होंगे ना अल्लाह और रसूल की सैनी इताअत साहब में, मौजूद हो? तो उस पे इनाम बाद में होगा। अच्छा सैनी साहब आमदे ने ना, तुसी सैनी साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। एक हद ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ तक ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ वैसे ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कहते हैं ना कि जो नेक लोग हैं वो जन्नत का मजा दुनिया में भी चख लेते हैं, तो उस लिहाज यानी से आप दुनिया क्या, ते नबी बन जाएंगे। लेकिन जो असल इनाम है, दायमी इनाम है, वो तो मौत के बाद है। भाई सीकर साहब ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ नहीं? अल्लाह और रसूल की इताअत, जो नबी होगा जिसको अल्लाह नबी बनाएगा, क्योंकि नबी जो है वो अल्लाह बनाता है ना, ਇਹ ਜਵਾਬ वो अल्लाह जिसको नबी बनाएगा वो लाजमी अल्लाह और रसूल की इताअत में होगा, और उसने अल्लाह और रसूल की कामिल इताअत की होगी। लेकिन वक़्त जो होता है, जो वक़्त होता है नबी का, वो एक वक़्त होता है जिसकी पेशन गोई पिछले आने वाला नबी कर जाता है। सैनी साहब आमदे ने तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ नहीं समझ आनी गल, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता लग गया। आप लोग अकल से पैदल हैं, आपको क्या लो समझ जी, आनी? अगर कोई बंदा आपके- 80 ते अकल तो आपके पैदल है पास ना, इतनी अकल है सैनी कि साहब स्टैंडर्ड- सही नहीं हो स्टैंडर्ड सकता, बनाने समझ हैं। आन। वैसे बाय द वे जो लोग सैनी साहब इल्म का IQ लेवल इल्म है, से ये बात भाई नहीं इसके करते ना, उनके अनपढ़। पास सिर्फ एक ही गुजारा है कि या तो गालियां निकालें या स्कैंडल्स बनाएं, और स्कैंडल्स बनाना गालियों से भी भाई बदतर। आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने से इस दुनिया में बंदा नबी बनता है? अल्लाह और अताअत की रसूल वजह से। की जो नबी अल्लाह ताला बनाएगा, जब वक़्त होगा नबी का, तो अल्लाह ताला नबी बनाएगा जिसकी निशानदेही तो पिछला नबी भाई का नहीं मैंने आता है। सवाल पूछा है, लेकिन जो अताअत की नबी वजह अल्लाह से नबी बनाएगा इस वो दुनिया अल्लाह में और बनता है? रसूल की इताअत की कामिल इताअत में होगा। इस दुनिया में नबूवत मिलने का सबब ये इताअत हो सकती है? इस दुनिया में अल्लाह जब नबी बनाएगा उसी को बनाएगा जो कामिल अताअत में हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि अताअत का इनाम ये हो सकता है कि नबी बन जाए? मैंने आपको 3-4 दफा सवाल का जवाब दे दिया है। अब आप अब तलत आपकी साहब अकल का जो ये है, मौक़िफ़ है कि इस दुनिया में ये नाम नहीं मिल सकता। आपसे बात कर करके मैं बार बार आपकी ठीक अकल पे है। मातम नहीं करना चाहता। मेरे पास सैनी साहब दा IQ कोई- लेवल चंगा, तुसी उन्होंने समझाओ।
जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, आपको नहीं समझ आ रही है तो ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपको तल्ला बात साहब नहीं का समझ आ मौक़िफ़ रही, आपको बात नहीं समझ आ रही तो कोई और बात कर ले। ਭਾਈ ਅਗਰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦਾ दूर को ਮੌਕਫ ਹੈ, बचकाना हरकतें करनी है। ਇਹ नहीं, दस ਦੁਆਲਿਆਂ दोबारा- ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਆਓ। बात ਉਹ ਲੜਨ सिर्फ ਲੱਗੇ एक ਨੇ और बता ਉੱਤੇ। दी है। नहीं वो तल्लत ठीक है साहब ना, की वो लड़ाई कह इस रहे हैं बात कि को क्यामत वाले दिन इनाम मिलेगा, तो ठीक है ना, क्यामत वाले दिन नबी जो पाक दायमी तल्लत नाम है साहब वो कहते तो ने मौत के क़यामत बाद वाले है, दिन नाम लभेगा। लेकिन वो ये आप सारी काम बात करने ऐसे ही नाम के देती लिए फिरती है। आप नेक बनेंगे, आप साले बनेंगे, सदीक बनेंगे, वो तो दुनिया में ही बनेंगे ना। हेलो, और उस पे जो दायमी नामात हैं वो तो नबी मौत के बाद है। नबी बनेगा, उस आयत में नबी नहीं शामिल। मतलब ये अल्लाह और तात रसूल नाल की नबी बन ताअत सकते में हैं। अल्लाह और रसूल की ताअत में ही अल्लाह ताला जिसको नबी तात का बनाएगा, तो इनाम अल्लाह इस दुनिया च मिलेगा कि अगली जान? बस ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ना वो आप इस दुनिया में बनेंगे जो है सदीक, शहीद, नबी, वो अल्लाह ताला इस दुनिया में ही बनाएगा ना। भाई क्यों? बहुत वो मौत के बाद बनाएगा। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जो सदीक है, जो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु हो, वो इस दुनिया में सदीक थे कि वो भाई सवाल जो पूछा है वो उसका क़यामत जवाब के आप दिन दे सदीक नहीं होंगे। सकते। पता लग गया सुनने वालों को आपके पास आप इस सवाल समझना का नहीं जवाब चाहते, आप समझना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है, भाई इसलिए इतना आसान सवाल है। ये आपके पास कौन सी जुबान है जो समझ नहीं आ रही मुझे? आसान सा सवाल पूछा है कि इस बहरहाल दुनिया में अतात करने से इनाम के तौर पर नबूवत मिल सकती इस दुनिया में? मैंने अब आपको जवाब दे दिया है। इसको क़यामत आने से अफवाह पहले ना करें। फिर आप कोई थोड़ा सा इखलाकी म्यार कायम रखें, अपनी भी इज्जत थोड़ी कायम रखें। बार बार रिपीट करी जा रहे हैं, इस पे मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूं तो और क्या करूं? नहीं नहीं, गाला कड्डो के बार सख्त बार अल्फाज repeat करी जा ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ रहे ਕੀ शान है। नहीं, सलाम का जवाब दे आपको दो। आपका आईना दिखाया जाएगा ना। सहदे यार एक बात है, वो आप समझा पा नहीं रहे। अक्ल का वजह म्यार ये है क्या कि है? आपके मैं इन आपकी बातों को बात पढ़ना अल्लाह नहीं साहब की चाहता। बात से मिलती नहीं है। अक्ल से अब अनफॉर्चुनेटली अक्ल इसके से लिए ऐसे कौन अपाहज सा है। IQ लेवल चाहिए? बंदा बताओ, आप उस बंदे को समझा दो। सैनी साहब को अमर समझा रजीज दो। साहब, मुझे मैं नहीं इसका जवाब दे देता हूँ अगर सुनेंगे तो। मैं बेवकूफ सैनी साहब अक्लमंद, उनको समझा दो। मैं आपको समझा सकता हूँ अगर सुनेंगे पता तो। नहीं आपके किस किस्म के दिमाग है, किस अच्छा, किस्म के फिर दिमाग अस्कानी है। भाई को बात करने दें। हाँ, आप समझना चाहते हैं? दो लफ्जों में समझना चाहते हैं? सैनी अमर साहब आ रजीज गए भाई? हो? जी जी बिस्मिल्लाह। सैनी साहब लड़ाई होने लगी है जेड़ी गल वादे ने तलत ज़हूर मलिक साहब मैं योते अल्लाह व रसूल फाउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। ਇਹ ਸਾਇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। या ਇਹ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। जो अल्फाज आप इस्तेमाल हेलो, कर रहे हैं सैनी वो साहब जो मौजूद हो। अपनी मर्जी के अल्फाज, आपकी ना आदत वैसे खुदा की कसम है। और गल तो सैनी साहब ने मनु कर ला दो। आप जैसे बंदे से ना घिन आती है खुदा की कसम। और यार आपको घिन आती है, हमें पता नहीं क्या ऐसी गल बनाना कर होके लेते हो। आपकी- ये ऐसे एक मर्द होके अच्छा इस तरह सैनी की साहब, बनाना तुसी हरकतें सीकर होती साहब है। को पूछो भी हम की देखो ये कहना दुनिया चाहते करना। हैं। मैं मेरे ना गल करो, सैनी साहब आजे ना गल गालियों पे एक मिनट है। आजे गालियों पे यार, आप सैनी साहब से बात मोहब्बत मेरा आपने एक सवाल है। गालियां निकालें, चले शाबाश शुरू हो जाए, असलियत दिखाएं यार अपनी। सैनी साहब को समझाएं कि तलत साहब का मौकफ क्या है, जमात का मौकफ क्या है। ऐसे फप्पे कुतनियां करना, स्कैंडल्स बनाना सीखा क्या आपने? इतनी उम्र हो गई है आपकी। वो सिक्कर साहब यार दुआएं चिट्ठे बनाना, पैन मैं सवाल सीखा क्या करना आपने? चाहता हूँ, मैं वो गाली नहीं चिट्ठे दूंगा। पैन डालूं मैं सैनी गाली साहब नहीं को ये दूंगा, मैं बात सवाल सुनाएं कि करना तलत चाहता साहब हूँ। का मौकफ क्या और आपका मौकफ बिल्कुल क्या, जमात खवातीन का की मौकफ तरह इनका स्कैंडल नहीं बनाना। अच्छा अल्फाज कोई मैं और है, गाली- कह के छोड़ देना, अपनी तरफ से अल्फाज बनाना। किस किस्म के बद अखलाक किस्म के इंसान है वो आप? सिक्कर साहब और- एक मिनट मौका और दियो। सुन लेना वो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, गाली नहीं दूंगा, सवाल करना चाह रहा हूँ। इजाजत हो तो सवाल करूँ। हाँ जी, आप हमें बिस्मिल्लाह मौजू से ना हटाएं। एक मौजू डिस्कस हो रहा है। नसर भाई, अगर आप जानना सर, चाहते हैं, मैं मैं 1 मिनट में इसका हल बताऊंगा। यार भाई, एक मिनट, एक मौजू, एक बात फंसी हुई है ना, उसको क्लियर हो लेने दो ना। 2 मिनट लगेंगे क्या है? अच्छा चले, आप कर ले, मैं फिर बाद में आ जाता हूँ। आप बात कर ले, मैं बाद में आ जाता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी हुसैनी साहब समझाओ फिर। एक ही मसला की पै गया ते बड़ा रुला बन गया। अर्ज कर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ
کہ جیڑی صورت نساء دی یہ آیت ہے میں یطع اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم اخیر تک جو بھی بیان ہوئی ہے وہ دے متعلق وہ کہندے نے کہ اے انعامات آخرت دے وچ اللہ تعالیٰ عطا اعزاز عطا فرمائے گا مومناں نوں تے اتنی گل اے کوٹ کر رہے نے اور صحیح کوٹ کر رہے نے کوئی گل غلط جھوٹ نہیں منسوب کر رہے میں بھی گواہ اس گل دا میں نہیں جی کیا اس گل دے متعلق کہنا کہ علامہ صاحب کوئی جھوٹ کہندے نے کوئی گالاں کڈدے نے کوئی بریاں تے کوئی یہ گل بنتی نہیں یہ تے کوئی جوڑ نہیں اس گل دا اگلی گل جڑی انہوں نے کہی ہے وہ تھوڑی جی الارمنگ ہے وہ غالباً منسوب کر رہے نے ٹروتھ سیکر صاحب مائک میوٹ کریو انہاں دا تھوڑی آواز تھوڑی جی خراب ہو رہی ہے مائک میوٹ کرو اچھا جی یہ میوزک نہیں چل میری صاحب آواز تھوڑی بند کرنی پے گی جی دوسری گل جتھے تک مینوں یاد رہی ہے کئی تو انہاں ہونے ہی ہیں لیکن اگر نہ ٹھیک ہوئی تو علامہ صاحب وچ تسی ٹھیک کر دیو تانوں حق ہے میں تہاڈی طرفوں یہ گل کہہ رہا کہ تسی یہ کہندے ہو کہ سیکر صاحب کہندے نے کہ ਇਹੋ جماعت دا موقف ہے بالکل سامنے بیٹھے نے ہاں اگر یہ گل ٹھیک ہے علامہ صاحب بھی اگر یہ گل کہہ رہے نے تو یہ بھی کوئی گالی والا لفظ نہیں یہ بھی صاف ستھرے لفظ نے جی انہوں نے حق پہنچتا کوئی انکار کر دین کہ میں نہیں کیا یا جماعت کا موقف نہیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں تے جے وہ قبول کرتے ہیں کہ جماعت کا یہ موقف یہ ڈسٹربنس ہونے لگی انہوں نے پھر تھلے لا دیا مائک میوزک یہ میوزک کلاس تے نہیں میں اتھے یہ گٹار ہوتا ہے کوئی گل غلط ہوتے منسوخ گٹار وجا رہے نے میں نال تواڈی سناواں ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ جی उसमें असल में आप पीछे चले गए हुए थे असल में इनके अंदर ना बहुत एक किस्म का इनको 3-4 दफ़ा मैंने जवाब दिया और ये उस जवाब को जो मैं दे रहा था उसको फेर के अपनी तरफ बात कर रहे थे और वो ये कर रहे थे कि जो इनामात हैं कि अल्लाह के सदीक शहीद सालेहीन अंबिया ठीक है वो कह रहे थे कि ये जो इनामात हैं यानी सदीक साले शहीद ये वो रोज़े आखिर में मौत के बाद बनेंगे ये वो अपनी तरफ से मतलब बयान कर रहे थे आमिर अजीज साहब ठीक है इसको बार बार मैंने कहा कि ये बात इस तरह नहीं है जो मैंने इनको समझाया और इन्होंने बार बार उसको रिपीट करी जा रहे हैं ये बहुत बद अखलाकी होती है और ये जो आप उस वक्त मौजूद नहीं थे आप एंड में आए हैं एंड में जो बात कर इन्होंने की है वो कुछ और थी जो पहले बात कर रहे थे वो कुछ और कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि नबूवत ही नहीं मिलनी इस दुनिया में कोई सदीक ही नहीं होना इस दुनिया में कोई शहीद ही नहीं होना तलत साहब ये कह रहे थे कि ये जो हैं ये वो इनामात हैं जो कि सदीक होना शहीद होना दुनिया में सदीक होना ये एक इनाम है ये दुनिया में नहीं मिलेगा ये बाद में मिलेगा इसी तरह नबी भी बाद में मिलेगा ये नज़ीर साहब बात कर रहे थे जो कि गलत कर रहे थे ठीक है इसको मैंने 3-4 दफ़ा समझाया इन्हें तो ये इंतहाई बद अखलाकी होती है कि जब आपने जवाब सुन लिया है बार बार रिपीट करना बार बार उसी बात को रिपीट करना तो इस लिहाज से मैंने इनको कहा था फिर वो फिर आगे से अपनी जो बातें बनाने की कोशिश कर रहे थे ये भी बड़ी एक जनाना किस्म की आदत है कि एक बात को बस अपनी बात को प्रूव करने के लिए बस अपना अंदर से जो जलन है वो निकालने के लिए इल्मी बात ना करना लेकिन एक जलन निकालने के लिए बात अपनी तरफ से बना के कर देना ये एक बड़ी जनाना किस्म की आदत है इसलिए मैंने क्योंकि 2-3 दफ़ा उन्होंने रिपीट किया हालांकि मैंने एक्सप्लेन भी किया तो इस वजह से मैंने उनको फिर मुझे ये कुछ बातें कहनी पड़ी ठीक है तो मतलब ये हुआ जो जितनी बातें आपने बयान फरमाई हैं कि आखिर में उन्होंने जो बात कही है वो सही कही है पहले वाली बातों से आपका इत्तेफाक नहीं उन्होंने अगर ये बात कहे ना कि जो इनाम है देखें जो इनाम है जो अल्लाह और रसूल की ताअत करेंगे तो आप उन ग्रोहों में होंगे उन ग्रुप्स में होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किए ये अल्लाह ये आयत कह रही है ये हम तो कोई इसमें कोई हम तो कोई अपना कोई तफहीम या वो पेश नहीं कर रहे ये तो अल्लाह की आयत सीधी सीधी कह रही है कि जिसने अल्लाह और रसूल की ताअत की वो उन लोगों में से होंगे उन लोगों के साथ होंगे या उन लोगों में से होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किए
यानी नबियों में से, सदीकीन में से, शुहदा में से, सालिहीन में से। या मतलब ये है कि उन ग्रोहों पे जिन पे अल्लाह ने इनाम किए, अब वो इनाम जो हैं वो रोज़े आखिर में हों, मौत के बाद हों, वो लेकिन वो ग्रोह वो होंगे जिन पर अल्लाह इनाम किए या अल्लाह इनाम करेगा। अब इनाम कब करेगा वो एक आप मौत के बाद कर लें, लेकिन बनेंगे आप साले सदीक शहीद इस दुनिया में ही ना, अल्लाह और रसूल की इताअत करने के बाद। तो ये बात थी पूरी, ठीक है। लेकिन इससे ये मतलब निकालना कि जी अल्लाह ने जो इनाम किए उसमें, क्योंकि वो दुनिया बाद में करेगा, तो आप साले भी नहीं होंगे इस दुनिया में, आप सदीक भी नहीं होंगे, आप शहीद भी नहीं होंगे, आप नबी भी नहीं होंगे अल्लाह रसूल की इताअत में। तो ये तो एक बड़ा ही एक बड़ा ही कहते हैं ना कि कुरान पे आप एक हर्फ डाल रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे, जो कामिल नबूवत थी, जो जिन पे तमाम नेमतें तमाम हुई, आप वो नेमतें उनकी उम्मत के लिए, खैर उम्मत के लिए बंद कर रहे हैं। तो ये वो क्यों नेमत कैसे है? क्योंकि आप उस दर्जे पे पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फिर मौत के बाद वो इनाम करेगा, दायमी इनाम करेगा, जन्नतुल फरदौस, जन्नत के फिर जो है जो जितने नामात हैं वो फिर बाद में जो दायमी नामात हैं बाद में होंगे। भाई शेखर भाई रहम करो, हुसैनी भाई को बात करने दीजिए। बहुत हो उन्होंने गया, मुझसे बात जितनी आप बात मुकम्मल अल्लाह कर के लें, लिए रहम करो। बड़े आराम से कर लें मुकम्मल। जी जी नहीं, मैंने कर ली है मुकम्मल, लेकिन पीर ठीक साहब है। जो है ऐसी नहीं भाई फतवा आप थोड़ा सा रहम के करो आगे ना भाईजान। जी जी अभी हुसैनी भाई की तरफ से उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने जवाब दिया ना। हाँ जी नहीं जी नहीं सुन जी लीजिए, जी ठीक है आपने जवाब दिया था, लेकिन रहम करो आप। नहीं नहीं बेशक आप अपनी बात, मैं तो कभी नहीं आपको टोकता, पता नहीं क्या दर्द उठ रही है। मुकम्मल करें बेशक बात। नहीं अगर मुझे मुकम्मल हो गई है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ये समझ रहे हैं कि अल्लामा साहब इनामात के इनकारी हैं, कि जो कुछ वादा दिया गया है ये अल्लाह ताला नहीं देगा। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लामा साहब इसके इनकारी हैं। अल्लामा साहब इकरारी हैं कि ज़रूर अल्लाह ताला ये जो वादा फरमाया है, अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, वो वादा अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। अल्लामा साहब ठीक मैं क्या है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस करके मेरा तो ख्याल है कोई इख्तलाफी बात इसमें आई नहीं। नहीं इनामात वाली गल तुसी जी समझ गए हो? जी नहीं जी आमिर साहब आपका सवाल ये था ही नहीं। नहीं सवाल ये है, एक सेकंड सैनी साहब, आपको समझ आ गई है कि इनामात इस दुनिया में मिलने हैं या आखिरत में, इस आयत के मुताबिक? अल्लामा साहब तीन गल्लां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਾਮ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਠੀਕ ਹੈ? नहीं इस आयत दा जेड़ा ना वो मेरा तो खैर मौकफ ही नहीं, मैं तो तल्लत साहब दी गल ते इन्हां दी गल पे करदा ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੁਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਹੋ। नहीं ये पता नहीं उन्होंने कित्थों इल्जाम लैंदा है। इस आयत दे विच ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਹੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ? बिल्कुल बिल्कुल ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਰਹਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫਾ ਵੀ ਬਰਹਕ ਹੈ। हाँ जी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਖਰਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਦਤ ਆਉਣਗੇ। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ अगले गल ये रह गई है कि सीकर साहब कहंदे ने इहो ही जमाती मौकफ है जो तल्लत साहब दा मौकफ है। तल्लत साहब दे मौकफ नु देखिए असानी साहब, देखिए ये एक प्रॉब्लम है। जी अब ये आमिर नजीर साहब जो है, जो मैं समझा हूँ वो मैंने आपके सामने पेश किया है। जो आप समझे हैं तलत साहब से, आप और ये आमिर नजीर साहब जो समझे हैं वो मैं नहीं समझा। ठीक तो आमिर नजीर साहब जो समझे हैं उसको कह देना कि सीकर साहब कह रहे हैं कि यही जमाती मौकफ है। मैं जो जमाती मौकफ जो मैं समझा हूँ मैंने पेश किया है, और मैं जो तलत साहब से बात समझा हूँ वो मैंने वो भी मैंने पेश किया है। वो मैं नहीं समझा जो आप लोग समझे हैं।
کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں عامر نذیر صاحب جو سمجھے ہیں نا اس کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی نہ آپ صدیق بنیں گے نہ صالح بنیں گے نہ شہید بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کو انعامات سمجھ رہے ہیں. صالح ہونا انعام ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا میں بنیں گے تو بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ انعام کرے گا. یہ فرق ہے. وہ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سے کہ نہیں, آپ یہ جو صدیق صالح شہید اپنی طرف سے وہ اس کو انعام بنا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ انعام نہیں ملیں گے, یعنی نہ آپ صدیق بنیں گے نہ صالح بنیں گے نہ شہید سو بنیں گئے. گے. اسکانی صاحب ہمیں بھی بولنے کی اجازت ہے یا آپ ਸਾਨੂੰ سب ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਫ ਤਤਬੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ. دوسرے کے منہ میں جو بات ڈال دیتے ہیں نا, اور میں سامنے بیٹھا ہوں, یہ اتنی بد اخلاقی لگتی ہے نا کہ گھن آتی ہے. یہ کتنے نہیں، بد اخلاق ہے. فوراً اس عامر طرف نذیر صاحب ان آپ میں بہت جتنی بد اخلاق باتیں ہم ہیں. نے کی ہیں, 1 منٹ میں عرض کرنے دیو, جتنی باتیں کہی ہیں اس میں کسی جگہ نہ گھن ہے, نہ کوئی بدبو ہے, نہ کوئی گندا لفظ ہے. انہیں مسلمانوں سے آتی ہے حرکت جو ہے وہ نا. عامر نذیر کی جو حرکت ہے نا نہیں, کہ میرے کچھ- منہ پہ وہ بات ڈال دینا جو میں نے نہیں، نہیں کی اور میں نے سمجھایا بھی ہے, یہ حسین صاحب انتہائی مجھے بد تھوڑا سا اخلاقی ہے. موقع دیجئے پلیز. جی 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 ٹھیک ہے حسین جی. صاحب بات یہ ہے, ثانی صاحب دیکھیں آپ بھی ناراض نہ ہوں, بات کو آپ بھی لمبا مت کیجئے. عامر نذیر صاحب نے اپنا کوئی موقف نہیں دیا ہے, نہ کسی نے اپنا موقف دیا ہے. صرف اتنا کہا ہے کہ طلعت جی کا موقف یہ ہے, دنیا میں نہ کوئی نبی بن سکتا ہے, نبی بنے گا جو ہے اللہ چنے گا. بلکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے, جو انعامات کی بات ہو رہی ہے, دنیا جو ہے امتحان ہے, امتحان میں جو پاس ہوگا کل قیامت کے دن اس کو انعام ملیں گے. نبی محنت سے نہیں بنتا, یہ طلعت جی کا موقف ہے. جماعت کا جو موقف ہے وہ اس آیات سے یہ ہے کہ اگر آپ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ کو دنیا میں ہی نبی بنا دیا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اب آپ بالکل بتائیے صحیح بات. کہ طلعت جی کا بالکل موقف, صحیح بات. یہ بھی آپ غلط بات یہ ڈالتی اتنا ہے. آپ نے بتانا ہے. اللہ اور صحیح رسول بات. کی اطاعت کرنے سے کوئی خود بخود نبی بن جائے گا, یہ بات غلط ہے. نبوت سن اللہ لیجئے تعالیٰ نا. عطا عامر بھائی کرتا ہے. ویڈیو لگا اللہ دو. مجھے تعالیٰ سن جب وقت لیجئے کو نا. نبی کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا تو تو موقع تب دیجئے تک سیکر بھائی. نبی بھیجتا ہے. لیکن جو بھی سیکر نبی صاحب تھوڑا موقع بھیجے تو گا اللہ دیجئے تعالیٰ, اللہ کے سینی بندے. صاحب وہ کو بات اللہ اور کرنے رسول میں کی سینی صاحب کو اطاعت سمجھنے میں دیں ہوگا. نقطہ. ہمیں نہیں سمجھ آنا پیر اسکانی بھائی ان کی بات, سینی صاحب کو بات سمجھنے کی کوشش کرنے دیں. نہیں حسینی صاحب اتنا لمبا کر رہے ہیں, آپ نے تو کوئی موقف نہیں دیا ہے. نہیں, ہمارا تو کوئی اس پوچھنا بات سے لینا دینا نہیں, صرف طلعت صاحب کا موقف اور پیر جماعت صاحب کا کی موقف جھوٹ بول رہے ہیں. بس ایک ہے, یا اس میں کوئی پہ تطبیق ہے یا حسین جی تضاد کا ہے. موقف سینی چاہیے. صاحب آپ نے بھی بس جھوٹ بولنا ہی سیکھ لیا. اب ہاں جو بس بات ٹھیک ہے. جماعت کی طرف سے دنیا آپ سب اپنی جھوٹی طرف ہے سے بس ڈال بھائی, رہے بھائی ہیں, ہم سب جھوٹے میں ہیں, کہہ رہا ہوں کہ سب ایسی بات نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیا شوق پڑا ہوا ہے اپنی طرف سے باتیں حسینی بنا کے صاحب, جماعت کی طرف ڈالنے کا. طلعت حسین یہ صاحب صاحب کو عجیب موقف بد جھوٹے میں اخلاقی ہوتی ہے, ان سے اور یہ بات بد جماعت کرنے کے اخلاقی موقف ہوتی دیجئے. ہے. میں کوئی تطبیق پائی جاتی ہے. آپ لوگ بد اخلاقیوں میں آگے بڑھے ہیں بس. بھائی لوگ. بد اخلاق, عورت, یہ وہ ہاں, تو سارا آپ کو کہہ دوں. کیا حق ہے, آپ کو کیا حق ہے کہ جماعت کے بارے میں اپنا جو ذہن بنایا ہوا ہے آپ نے وہ جماعت کی طرف تھوپ دینا. او بھائی, یہ ویڈیو چل رہی ہے سویرے کی, مجھے ملک قیصر صاحب نے بھیجی ہے ویڈیو, سویرے سویرے اٹھتے ملی ہے مجھے. جو کچھ رات کو آپ نے گل کھلایا ہے نا, وہ مجھے سویرے سویرے ویڈیو ملی ہے. اس لیے یہ بات چھڑی ہے کہ طلعت صاحب کا موقف اور جماعت کا موقف, اس میں کوئی تطبیق نہیں پائی جاتی. بس یہ میرا کہنا ہے, اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. آپ کو گھن آئے, آپ کو اچھا لگے, برا لگے, کوئی لیکن بھی میرا اور لفظ کوئی برا موقف نہیں, کوئی بھی گندا نہیں, کوئی گھننے والی بات نہیں ہے اس میں. یہ سارے اچھے ثانی صاحب میں نے غلط بات کی ہے. کوئی بری بات نہیں. ہاں, اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے موقف میں تطبیق موجود ہے تو وہ بتا دیں کیا تطبیق ہے. کسی دوسرے کے منہ میں کوئی بات ڈالنا جو اس نے نہ کی ہو, اور پیر اسکالی صاحب پوری ایک جماعت پہ وہ بات ڈال دینا جو جماعت کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ ایک بد اخلاقی ہے. اس سے باز رہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ویڈیو لگا دیتے ہیں. چلیں. اگر آپ نے یہ میں حرکتیں چلانا کرنی ہیں, ویڈیو. ویڈیو ادھر سے پکڑ لی ادھر سے پکڑ لی, کیا بات چل رہی, جو پوری بات میں نے بیان کر دی ویڈیو ہے نا. کل رات کو باتیں ہوئی ہیں وہی ویڈیو, اور کوئی اپنے پاس سے ہم نے بنا لی ویڈیو. او بھائی, جو مرضی آپ بات ویڈیو سے نکال لیں, کہیں سے پکڑ کے نکال لیں, بات کیا ہو رہی ہوتی ہے, کس پہ جواب ہو رہا ہوتا ہے, جب اگلے سے آپ آرام سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا اس پہ بیان ہے, جو اسے پورا بیان دیا ہے اس کو پکڑیں. بار بار اپنی بات حاجی تو الحاج ہو گئے, کیوں جی کتنے ٹر گئے ہو,
सुनो तलत साहब का मौका। इधर ही हूँ, आप बात तो पूरी करें। मैं कह क्या कर रहे हैं रहा आप? हूँ, क्या मैं बात कर अर्ज रहे हैं? ये करो, मैं रिपीट करूंगा, बेफिक्र हो जाओ कि आप कहते हो अल्लाह और अल्लाह की रसूल से इनाम मिलेंगे, ठीक है। हमारी जमात अब ये कहती है खत्म, एक नु इनाम मिलना सी, उन्होंने इनाम मिल गया, और किसी नु इनाम नहीं देगा अल्लाह ताला। और अहमदियत झूठी है या तुसी झूठे हो जी? अच्छा, अगर आप किसी को इनाम नहीं देगा अल्लाह ताला, आप इस ये बात पर कायम है? आपने आप इस खलीफा बात पर साहब के कायम है? पीछे- आप इस बात मैं पर कायम कायम है? मैं कायम हूँ, हमारी जमात कहती, मैं नहीं कायम, मैं आप नहीं नहीं कायम। कायम। जाहिलाना बात ना करें, मैं आपकी लेकिन जमात का अभी आप- मौक़िफ़ दे रहा हूँ। मौका आपकी- बता देता हूँ मैं आपको। ये पागल है यार, ये आदमी पागल है क्या है इसको यार? यार फिर वही ये मैं आपसे पूछ तलत रहा हूँ भाई कि आप अभी आप कह रहे थे मैं गलत कायम हूँ, और मैं क्या राशिद नहीं भाई ना करें बहस, छोड़ दें, कल तहकीक करके आएंगे हम। सर आप निकालें, अभी निकालें। जी जी मैं कल तहकीक करके जल्द आऊंगा। 5 राशिद भाई एक काली साहब जो शरह है ना, निकालें। शरह बताएं में मुझे सुने, कि वो आला 346 साहब सुन ले, शरह में कोई शर्म नहीं है, सुन ले हमारी जमात का अब ये मौक़िफ़ है कि अब अल्लाह ताला नबी रसूल नहीं भेजेगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, अब मुझे इजाज़त देते हैं, इजाज़त। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, अब नहीं भेजेगा, यानी हजूर ने ये बता दिया, हमारे खलीफा साहब ने, कि मुझे अल्लाह ताला ने इलाम ये वही कजी तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनको नहीं किया, मैं समझाने के कह रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ने बता दिया है कि अब कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कामिल इताअत नहीं कर सकता। एक शख्स था जिसने पूरे इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, एक इनाम याफ्ता बंदा है, इसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम। उसके अलावा किसी को अल्लाह नबूवत वाला इनाम दिया ही नहीं है, ना देगा, आगे नहीं देगा। उनको पहले पता चल नहीं गया इनसे ऐसे पूछे सुने। कि क्या बहुत खूब जी, बहुत खूब। यही मैं तो हमेशा से यही रो रहा हूँ कि जमात वाले तो इनका यही मौक़िफ़ है, ये सब कुछ बंद बुंद करके बैठ गए हैं, क्योंकि तलत वो साहब ने मंजी ठोक दी है गद्दी कि चल सारी नहीं जमात सकती की। आगे, ना बंद करें तो। ये वो बात जवाबी रंग में कर रहे थे, क्योंकि वो एक बात बयान कर रहा था, उसके जवाब में कि अगर हम ये ज़ूम करें तो फिर क्या अल्लाह ताला क्या कोई कामिल तात नहीं करेगा, या क्या अल्लाह ताला ने नाम बंद कर दिए। वो एक जवाबी रंग, कैसे क्या कहते हैं इल्जामी उसे, रंग में। इल्जामी रंग में। इसलिए मैं बात को बार बार कर रहा हूँ कि वीडियो इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, उसकी बजाय आप अगले बंदे से खुल के बात कर लें। सीकर भाई कि इन्हां नूं समझाणे कि सिर खपांड है। इस्लाम दुआ ते ले लो सर मेरे नाल। वालेकुम सैनी सलाम साहब की हालत भी है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है बड़ी ते तलत साहब कोलों ये भी जवाब है ले लैन कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरमियान 600 साल कोई नबी नहीं आया, ते क्योंकि तलत साहब अल्लाह ताला दे नुमाइंदे ने, ते उन्हां नूं ये भी गल पुछ लैन कि वो क्यों नहीं आए विच बई। कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਹੀ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ? कोई नहीं आया साढ़े इलम च ते ये वे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने, और ये अरसा 600 साल से तकरीबन। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੈਸਾ ਬੈਨੀ व बैना नबीयन के ईसा अलैहिस्सलाम दे ते रसूला दे दरमियान कोई नबी नहीं। हाँ जी, तो इसे तरह इत्थे भी दरमियान च कोई नबी नहीं। नहीं कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ तो है मसला लैसा की हो बैनी गया व ना? बैना नबीयन, ਉਹ ईसा अलैहिस्सलाम और रसूला दे दरमियान की है ना। ओए आहो ਉਹਦੇ चलो ਬਾਅਦ उत्थे भी हो तो कोई गई, पर नहीं। इत्थे दे दरमियान च नहीं नबी आया, तो मसला की है? नहीं नहीं वो मसला है कि हदीस मिर्जा ਜਿਹੜੀ ਹੈ साहब ने ਉਹਦੇ झूठ ਮੁਤਲਕ बोलिया है कि हर जी मुजद्दिद नबी हुंदा है, ਇਹ जी मसला है। मिर्जा साहब ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ नहीं ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ बोला, ਜਾਓਗੇ? तुसी अपनी बकवास बंद रखो। नहीं नहीं अच्छे लफ्ज बोलो, इंज ये ना कहो बकवास। अच्छे लफ्ज है ना, तो कोई उम्मीद कोई नहीं है वैसे। नहीं इस तरह ना कहो सिद्धू साहब एक सवाल का जवाब नहीं तो इन्होंने क्यों क्या झूठ बोलिया? ये मामे लगते मिर्जा साहब। तो मिर्जा साहब ने किहा ना हर मुजद्दिद नबी हुंदा है, आप ये किताब बरिया। देखिएगा कि जिसके तो इल्म उन्होंने की की कमी है ना, करोगे? जिसके साथ अल्लाह और रसूल नहीं है, इनकार वो करना पड़ेगा ना गद्दे उन्होंने। सवाब ही निकालेगा, जैसे तारिक साहब निकाल रहे हैं। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ नहीं ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। मिर्जा साहब कह सिद्धू रहे साहब ने छोटे सा नबी जवाब की दे दियो। मलिक सिद्धू नैसर साहब साहब एक मिनट सुनो ज़रा। मिर्जा साहब कह रहे ने नबी के लफ्ज़ से इस ज़माना के लिए सिर्फ खुदा ताला की ये मुराद है कि कोई शख्स कामिल तौर पर शर्फ़ मुकालमा और मुखातबा इलाही हासिल करे और तजदीद दीन के लिए मामूर हो, ये नहीं कि कोई दूसरी शरीयत लाए।
ਤਜੱਲੀਆਤ ਇਲਾਹੀਆ ਸਫਾ 401। ਤੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਨਬੀ ਮੁਜੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਜੱਦਦ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ नबूवत का आप सिलसिला है और भी पढ़ और ना जिधर नबूवत का और भी सिलसिला पढ़ ना लें, हो मेरी बात दीन मुर्दा सुने। है। सिर्फ एक जगह नहीं लिखा हुआ नबी के बारे में, आप मुकम्मल पढ़ें तो आपको ये भी समझ आएगा कि नबी पे ईमान लाना लाजमी है। अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के लाजिम है, रसूलों पे हाँ, ईमान, उन्होंने यही कहा किताबों पे मुजद्दद का ईमान, मुनकिर फासिक है, मजद्दद नाम के साथ मजद्दद क्योंकि के सिलसिले को मुजद्दद मानना ममूर होता है, है इसलिए उसका लेकिन मुनकिर फासिक है। मजद्दद को नाम के साथ ईमान अगर हिस्ट्री में लेके आए हैं मुसलमान तो मुझे दिखा दें। वो मुसलमान किसी मुजद्दद पे मुसलमानों की हाथ बात पे नहीं कर बैठ रहा, के वो तो पहले फासिक हैं। मैं मिर्जा साहब लेकिन की बात कर रसूलों रहा हूँ। पे, अल्लाह पे मिर्जा साहब और कह रहे जो हैं ईमान के और हैं ये वो है कहना अल्लाह कि पर ईमान, मुजद्दिदों पर अल्लाह के ईमान रसूलों पे लाना नाम, कुछ फर्ज नहीं, ईमान, अल्लाह की खुदा किताबों ताला पर के हुक्म ईमान, से उस इन्हिराफ पे है, ईमान लाना लाजमी है। क्योंकि वो फरमाता इसलिए है बात मन मुकम्मल कफर करें। बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल आप फासिकून। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुरान पूरी बात मजीद की होती बात है कर ना रहे हैं वो मिर्जा सिर्फ साहब। एक जगह नहीं लिखी होती, जहाँ और चीजें लिखी हुई हैं वो सारों तो को मैंने सामने 3-4 लाएं, जगह आपको बता फिर दिया उसको ना। कुरान और अहदीस के हिसाब से समझें कि किसी भी नहीं, नबी मिर्जा और साहब रसूल की पे बात, ईमान अच्छा मिर्जा लाना साहब की एक और बात लाजमी सुन। है। मिर्जा मजद्दद साहब ने तो कह रहे कभी हैं भी हिस्ट्री में आप दिखा दें कि मुसलमानों से बैत ली हो। एहदिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ से साबित होता है कि अल्लाह ताला एक जिल्ली सिलसिला पैगंबरों का इस उम्मत में कायम करना चाहता है। एक बंदे ने नहीं आना जेड़ा तुसी बना के बैठे हो जी, एक आ ईमान गया मैं 1400 बता साल रहा बाद, हूँ जो बस जी मुकम्मल, बंद बुंद हो गया सब फिर वही कुछ। बात कर रहे हैं ना, अल्लाह पे ईमान और अल्लाह के ये रसूलों पे जिल्ली ईमान। सिलसिला तो पैगंबरों का। रसूल और पे फिर ईमान मिर्जा लाना साहब कह लाजमी रहे हैं, होता है। सैनी मुझे साहब तुसी ये इत्थे बता मौजूद दें हो। किसी सैनी मजद्दद मेरी साहब बात ने सुन लो, थल्ले मिर्जा साहब कह बैत रहे ली हो। हैं यार गल सुन लो एक मिनट। हमारी हेलो जमात सारे सुन लो यार। खसूसियत ओ है भाई कि तारक साहब एक मिनट जी, एक मिनट। सैनी साहब पाक फौज दे हाँ सैनी खबर साहब लेके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। शानी साहब मिर्जा सैनी साहब साहब कितने थल्ले लेके पहले जाओगे? नंबर ते यार तारक एक मिनट सबर कर लो यार, सबर कर लो। थल्ले एक बगैरत बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਉਹ ਥੱਲੇ ते चबला मार रहा है ਛੱਡੋ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਥੋਮਸ ਮੂਲਰ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਦਈਏ? ਕਿਉਂ? ठीक है ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। नहीं होने देंगे। हाँ बाकी जो तलत मलक की ब्राड पे सारा दिन यही काम हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हम ये चीज नहीं होने देंगे। और तलत मलक मिर्जा साहब साहब की ब्राड कहते हैं पे मैं अपनी पूरा दिन जमात को यही नसीहत काम करता हूँ नबी बनने के लिए कोशिश करें। वो किथे लेके जाओगे मिर्जा साहब नु? बड़ी हंसी आई है टू सीकर। मफलूज हो गए बेचारे। देखिए मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं गरज मुनिम अलैहिम लोगों में जो कमालात हैं और सिरात अल्लाह दीना अनमता अलैहिम में जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है उनको हासिल करना हर इंसान का असल मकसद है और हमारी जमात का खुसूसियत से इस तरफ मतवज्जो होना चाहिए। तारक चौहान साहब ये बताएं कि अब्दुल गफार जंबा साहब ने नबी का दावा किया है। अब्दुल गफार जंबा साहब ने, वास्ते जरूरी है सुनो उसनो। मिर्जा मैं साहब कह रहे हैं अब्दुल गफार जंबा साहब ने नबी का दावा किया है। कोशिश बखान करनी चाहिए, जमात को नसीहत कर रहे हैं वो। आप कह रहे हैं एक ही ने आना था, आ और गया भाई 1400 अपने साल मुंह से बाद। ना कहो ਉਹਦੇ अब्दुल बाद गफार कुंडी जंबा लागी साहब ने दोबारा। नबी का दावा किया है। तो मिर्जा साहब की बात को माने या उनको फिर झूठा करार और दें। भाई तो आपका तुम्हारी कोई बात मसला नहीं मानते है, हैं, फिर मुझे मौके ये बताएं कि अब्दुल गफार जंबा ने नबी का दावा किया है। और मिर्जा गुलाम अहमद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जंबा साहब की भाई तबलीग किते और जाके आप करो। अब्दुल ਇੱਥੇ गफार जंबा ਦੀ साहब ਤਬਲੀਗ ने ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ? ਤਬਲੀਗ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ- ਹੱਕ ਮੁਅਦਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨਬੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਰੇ ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਾਫਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਾਫਰ ਬਣ ਅਬਦੁਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਭਾਈ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਭਾਈ ਜੰਬਾ ਜਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ fraud ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ। ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ? ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਜਨਾਬ ਮੁਅੱਦਲ ਅਬਦੁਲ ਨੇ। ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ मिर्जा ਦਾਵਾ साहब ਕੀਤਾ। कह रहे हैं नबी के मिर्जा साहब माने नहीं, सिर्फ ये मैंने है कि अब्दुल खुदा गफार जंबा से साहब की वही बात पाने सुनी वाला है। हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं तजदीद उनको करने पढ़ना वाला चाहता हो। हूँ।
तारिक फिर चौहान साहब मिर्जा साहब कह रहे हैं हमारा मजहब तो ये है कि जिस दिन में नबूवत का सिलसिला ना हो वो मुर्दा है। ने क्या दावा किया है कि मैं नबी ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। तो ये भाई सारे मिर्जा मिर्जाई साहब कह खलीफे रहे हैं मिल जो के वो कह रहे ये हैं। दीन को मुर्दा क्यों साबित करना चाहते हैं? ओ प्यारे भाई मैं आपसे मेरे बात भाई कर रहा हूँ, आप सारे आप ये मिल कह के रहे हैं दीन को क्यों मुर्दा साबित करना चाहते हैं? मिर्जा साहब तो कह रहे हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम जी, पाक फौज जिंदाबाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, पाक फौज जिंदाबाद साहब। वालेकुम सलाम। सर क्या मसला है आपको, मुझे पहले आप ये बताएं कि आपको जंबा साहब से मसला क्या है? हाँ नहीं ये फौजी नहीं, पाक फौज जिंदा साहब आपको जंबा साहब से मसला क्या है? जंबा साहब अलैहिस्सलाम से मसला क्या है? जी वो रहे हैं अगर वो रहे हैं एक फासिक की बात में रहे हैं तो क्या नबी एक फासिक की बात में नहीं रह सकता? नहीं तो क्यों नहीं रह सकता? नबी जो है वो फासिक की बात में क्यों नहीं रह सकता? सवाल है तो नबी जो है वो फासिक की बात में क्यों नहीं रह सकता? जंबा साहब अलैहिस्सलाम अगर किसी फासिक की बात में रहे हैं तो इसमें आपको मसला क्या? पाक फौज जिंदा साहब आप क्यों आप जंबा साहब के पीछे क्यों पड़े हैं? आप जंबा साहब अलैहिस्सलाम के पीछे क्यों पड़े हैं? जंबा साहब अलैहिस्सलाम कर दो वक्फा बराए अकल का टाइम आ गया है तो मेरा ये ख्याल बात तो नहीं सुननी कि वक्फा बराए अकल माइक ला के ना गाला कढ़नियां शुरू कर देंगे। वक्फा बराए अकल का टाइम आ गया है। माइक ला ये कर लिए तो फिर माशाल्लाह